Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Dear students, as we are studying unit number 2, structure of atom, and this is our 4th lecture. Before going to today's topic, we will discuss some points from the previous lecture. Students, do you know what is an electron? Electron is a negative charged particle with the mass of 9.11 into 10 power minus 31 kg. Where should electron lies? Students, electron lie around the positive center nucleus in a fixed circular path, and this fixed circular path is known as shell, or we can say orbit, or we can say energy level. There are different energy levels or different shells, and we denote these shell by n, and n is equal to 1, 2, 3, etc. Students, do you know by whom were shell discovered? The shell were discovered by Niels Bohr in his atomic theory, and he represent the shells by n, and n is equal to 1, 2, 3 up to so on, and also he gave the name to this shell as K, L, M up to Q. Students, there are different number of shell and the further subshells. So today we will discuss about the shell and subshells. Students, do you know what is shells? The shells are the path around the nucleus in which electron get revolved are called shells. वो path पॉजिटिव चार्ज सेंटर न्यूक्लियस के अराउंड, वो पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? शेल्स. अब इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स या फिर ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नील बोहर एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड शेल और ऑर्बिट, और वी कैन से एनर्जी लेवल्स, and we can denote these shells by n, small n, each shell having the fixed energy, or we can say these shell having quantized energy, means fixed energy. Students, as these shells are denoted by n, so the value of n is equal to 1, 2, 3. As the number of shell increases, n will also, the value of n is increases. आपके पास जैसे जैसे न्यूक्लियस से नंबर ऑफ शेल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. अगर आपके पास एक शेल है तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1. अगर 2 शेल हैं तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2. अगर आपके पास 3 शेल हैं तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 3. जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो आपके पास n की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. ठीक है. द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज एंड एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज. जितना आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से शेल का, उतना ही शेल या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट शेल में एनर्जी 5 किलो जूल है तो नेक्स्ट शेल में 10 किलो जूल पर मोल होगी, देन 15 किलो जूल पर मोल. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द शेल्स? वी कैन रिप्रेजेंट द शेल बाय कैपिटल लेटर K, L, M, N, O, P and Q. We can represent shells by these alphabets. Students, how many numbers are there? There are approximately equal to the 7 numbers. There are 7 number of shells which are K, L, M, N, O, P and Q. These 7 are the shells around the nucleus. These are the fixed circular paths in which electron get revolve. Now students, we will define one by one each shell. Students, how many shells are there? As you know, there are 7 shells around the nucleus. So the first one shell is K shell. Students, K shell is the nearest shell around the nucleus, or we can say the first shell around the nucleus is known as K shell. Students, सबसे लोएस्ट शेल जो कि न्यूक्लियस से कम तरीन डिस्टेंस पर मौजूद होगा वो आपके पास कौन सा है? के शेल है। ठीक है, अब के शेल जो है इसकी एनर्जी आपके पास क्या है? इसकी एनर्जी
लेस एनर्जी या सबसे मिनिमम एनर्जी होती है के शेल की, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जबकि हम लिख रहे होते हैं इन शेल्स के अंदर, कभी हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, कभी हम 4 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, कभी हम किसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन लिख रहे होते हैं। तो ये किस रीज़न की बेस पर हम लिखते हैं? क्या हम एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं तो हम दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिख सकते? सो इसकी रीज़न ये है कि आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन होती है, ठीक है, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए जनरली पहले हम एक फार्मूला की बात करते हैं कि आपके पास एक फार्मूला है विच इज़ 2n²। अब ये जो फार्मूला है इससे आपके पास टोटल जो 7 नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, इन 7 नंबर ऑफ़ शेल में हम इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन को फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर पाए जाएंगे, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के शेल में होंगे, L, M, N अप टू Q तक शेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। सो जैसा कि आपके पास के शेल है तो हमें ये चीज़ पता है कि N जो आपके पास है, N इज़ दी नंबर ऑफ़ शेल विच इज़ 1, 2, 3 अप टू 7 जितने आपके पास शेल हैं वो आप यहाँ पर पुट करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं के शेल के लिए हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, इसमें एक मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास 2 एज इट इज़ आएगा और 1 की जगह आप n की जगह जो है नंबर ऑफ़ शेल पुट करेंगे। अब के इज़ द फर्स्ट 1 शेल, सो आप लिखेंगे फर्स्ट एंड आपके पास आएगा 2 इंटू 2 1 इज़ 1, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है एंड 2 1 इज़ 1। सो पहले आपके पास के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि सेकंड शेल की हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 इंटू n जो है वो मैं सेकंड शेल पुट कर लेती हूँ। हम सेकंड शेल के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। तो सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिया आपके पास, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 एंड 4 2 ज़ार 8। सेकंड शेल में आपके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह से बात करें थर्ड शेल की, ठीक है, हम आगे नंबर ऑफ़ शेल्स के साथ साथ मूव करेंगे, लेकिन आप थर्ड या फोर्थ शेल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ शेल में आपके पास क्या है, 4 का स्क्वायर जब हम लेंगे 16 एंड 2 16 आर 32। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन अ वेरियस शेल, कि आपके पास कौन सी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है और किस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ के शेल, तो के आपके पास फर्स्ट शेल है तो इसके लिए आपके पास एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इज इक्वल टू 2। सो हम कह सकते हैं कि के जो शेल है, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल है, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इन 2 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, second one is L shell. So the first one shell is K and the second one shell is L shell around the nucleus. The second shell around the nucleus is known as L shell. अब यहाँ पर L जो शेल है इसकी एनर्जी भी आपके पास मिनिमम एनर्जी होती है, लेकिन ग्रेटर देन दी के शेल, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपके पास एनर्जी की अमाउंट भी इंक्रीज होती जाएगी। नाउ एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो उसी तरह से आप 2n² के फार्मूला से इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज m शेल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, द थर्ड वन शेल अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज m शेल। स्टूडेंट्स, हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 2n² फार्मूला जब हम पुट करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 9 एंड 9 2 ज़ार 18। सो 18 इलेक्ट्रॉन जो है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन m शेल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम इस शेल के अंदर 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। नाउ स्टूडेंट्स, द 4th, 5th, 6th एंड 7th शेल आर, हम इन सब को कलेक्टिवली हम इनकी स्टडी करेंगे कि आपके पास न्यूक्लियस से जैसे जैसे हमने पहले किया है L, M, N जो है आपके पास, इन शेल्स को हमने डिटेल से पढ़ा, तो इसी तरह से हम बात करेंगे न्यूक्लियस का फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड देन 7। न्यूक्लियस के अराउंड 7 आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ K, L, M, N, O, P एंड Q।
अब आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरह से बाय द हेल्प ऑफ 2n² हम बात करेंगे कि 2n² से हमने जो है इन शेल्स के अंदर एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया था। तो फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, नेक्स्ट में 8, देन 18, फिर 32, फिर आपके पास जो है 50, 62 एंड देन क्यू शेल में आपके पास 98 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आपके पास एग्जिस्ट करेंगे 1 बाय 1। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ द शेल्स की। जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस से ज़्यादा होगा उतनी ही आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ही आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल स्टार्ट हम करते हैं 5 किलो जूल आपके पास एनर्जी है, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट शेल में 10 किलो जूल होगी, उसके बाद 15, 20, 25, 30 एंड देन 35 किलो जूल पर मोल। जैसे जैसे आपके पास न्यूक्लियस से शेल्स का डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। स्टूडेंट्स, नाउ डू यू नो अबाउट द सब शेल्स? What are the subshells? Students, we can define subshell as the region in shells where the probability of finding electron is maximum. Students, shells के in between, ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियस है। इन न्यूक्लियस में शेल के बिटवीन रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम हो, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? सब शेल्स। स्टूडेंट्स, हम सब शेल को सब एनर्जी लेवल्स या फिर ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सब शेल्स? सो वी कैन रिप्रेजेंट द सब शेल बाय द अल्फ़ाबेट S, P, D and F. There are 4 subshells. There are 4 subshells S, P, D and F, and we represent subshell S with small alphabets S, P, D and F. तो स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 S, P, D एंड F सबशेल्स को डिफ़ाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम बात करें S सबशेल की तो S आपके पास सबसे लोएस्ट एनर्जी शेल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एनर्जी जो है वो मोस्ट मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही लोएस्ट एनर्जी होती है। अब हम शेप की अगर बात करें तो इट हैव दी स्फेरिकल शेप, ठीक है, S की स्फेरिकल शेप है। अब हम बात करें S की तो S स्टैंड्स फॉर शार्प, ठीक है, S स्टैंड्स फॉर शार्प सबशेल, ठीक है। इसको शार्प सबशेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे लोएस्ट एनर्जी शेल है, ठीक है, और इसकी शेप आपके पास क्या है? इसकी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। अगर हम एकोमोडेशन की बात करें कि यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम S सबशेल में आपके पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके पास हम फार्मूला जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप गौर से देखिएगा कि आपके पास फार्मूला है 4n-2। इस फार्मूला से हम सब शेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? अब 4 आपके पास एज इट इज़, n आपके पास है नंबर ऑफ़ सब शेल्स, 4 इंटू n आपके पास 1 माइनस 2, 4 1 इज़ 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। सो हम जो है बात करेंगे S सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द सेकेंड वन subshell is P subshell. It is denoted by small p. It is denoted by small p and its energy is greater than S subshell, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, अगर शेप की हम बात करते हैं तो P जो है आपका, सबसे पहले हम बात करेंगे P रिप्रेजेंट क्या करता है। तो P आपके पास रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल, ठीक है, P रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल। अब P सबशेल की जो शेप होती है वो आपके पास डम्बल शेप होती है, ठीक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, या आपके पास इस तरह से सेम लाइक डम्बल्स, ठीक है। अगर हम एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम एज इट इज़, हम उसी फार्मूला से जाएंगे। 4 इंटू नंबर ऑफ शेल आपके पास ये सेकेंड सबशेल है, 2 माइनस 2, 4 2 ज़ार 8 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 6। सो P सबशेल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। हियर स्टूडेंट्स, D इज़ यूज्ड फॉर, और D रिप्रेजेंट्स डिफ्यूज्ड, D रिप्रेजेंट्स डिफ्यूज एंड दिस इज़ द थर्ड वन सब शेल, ठीक है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन की बात करें तो इसी तरह आपके पास फार्मूला से हम जाएंगे। 4n, n इज़ द थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड सब शेल, 4 3 ज़ार
12 - 2 विच इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो आपके पास शेप कैसी होती है इसकी, बिल्कुल आपके पास जो है इस तरह से इसकी शेप होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये शेप होगी, ठीक है। सिंपली स्फेरिकल शेप एस की है, डबल शेप पी की है, और इस तरह की शेप होगी किसके लिए, डी सब शेल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, द 4th शेल सब शेल इज एफ सब शेल। नाउ एफ रिप्रेजेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स एफ रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेप्स ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ सब शेल जो है इसकी शेप आपके पास बहुत ही कम्प्लेक्स शेप होती है, और ये कुछ इस तरह से शेप है, ठीक है। हैविंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। इसके 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसी तरह से आपके पास 4n - 2 के फार्मूला से जाएंगे, ठीक है। -2, 4 4 is 16, -2 इज इक्वल टू 14। सो एफ सब शेल के अंदर आपके पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सब शेल्स की, तो हमारे पास सब शेल्स कितने हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ये 4 आपके पास सब शेल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एस सब शेल की, तो एस के अंदर मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पी की बात करें तो पी के अंदर मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डी सब शेल की बात करें तो डी सब शेल में मैक्सिमम एकोमोडेशन है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एफ सब शेल की जब हम बात करते हैं तो एफ सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हमें ये पता कैसे चला, तो ये आपके पास क्या है, 4n - 2 आपने फार्मूला जब पुट किया तो इस फार्मूला से आपने ये वैल्यूज़ फाइंड की। इज़ इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड द समिंग अप। स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया शेल को। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज शेल? The way or path around the nucleus in which electron get revolve is known as shell or orbit। कि वो वे न्यूक्लियस के अराउंड, वो आपके पास सर्कुलर पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसको हम शेल कहते हैं। शेल को हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिट का एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं। नंबर ऑफ शेल, देयर आर टोटल 7 नंबर ऑफ शेल, के L, M, N एंड O, P अप टू Q। नाउ एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर आ सकते हैं, तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया 2n², ठीक है। इस 2n² के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट शेल है, जैसे कैश शेल के अंदर आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल के अंदर, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हम जो है पुट करते जाएंगे नेक्स्ट फार्मूला में वैल्यूज़, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ सब शेल? The region or spaces in shell where the probability of finding electron is maximum is termed as subshell। जहाँ पर वो रीजन शेल्स का जहाँ पर आपके पास probability of finding electron is maximum हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास subshell है। Now how much subshells are there? There are only 4 subshells, S, P, D and F। Now what are the accommodation of subshells? कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एकोमोडेट कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हम पहले बात करेंगे एस सब शेल की। तो एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे पता चला आपको? 4n - 2 के फार्मूला से, ठीक है। वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सब शेल्स। पी सब शेल में आपके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सब शेल में 10 एंड एफ सब शेल हैविंग मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अब आपने मूव करना है पेज नंबर 86 फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। यहाँ 86 से लेकर आपने पेज नंबर 87 तक जो है यहाँ पर आपके पास टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आपने लेक्चर से रिलेट करके जो जो न्यू चीज़ें लेक्चर में बताई गई हैं उनको रिलेट करके आपने एक कंप्लीट असाइनमेंट बनानी है और फिर मुझे सबमिट करनी है।